Hey guys, welcome back to our channel. I am Urvashi Singh, and as in the previous videos, we have already discussed about respiration in plants and animals. So today we'll move ahead with respiration in humans, in which we will study how do we get oxygen from air and what does our body do to release energy from the food that is assimilated into our cells. We have already studied in nutrition to get energy. If you have not seen the videos of digestive system and nutrition, go check them out. I'll link them about the videos in the description box. Also, if you have not subscribed the channel yet, go subscribe it and ring the bell icon so that you get notified every time we put up a new video for you. So without any further ado, let's get started. Respiration in humans. So we come to talk about respiration in humans. How do we humans respire and how do we get our oxygen and we use that to release energy so that we can work. Like other animals, humans are also air breathers. Like other animals we have studied, and humans जो हैं, human beings or man, they also breathe from air. We breathe from air. The process of respiration takes place inside the cells of the body, which involves our respiratory system. The process of respiration. First of all, what is respiration? Respiration is the process by which oxygen is taken inside the body and is used to release oxygen and is used to release energy from the glucose that is assimilated inside the cells and also giving out carbon dioxide and water as a byproduct. तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर होती है और ये इस चीज में क्या इन्वॉल्व होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन. फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका फंक्शन है ऑक्सीजन अंदर लेना एंड टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं एंड वी ब्रीद आउट और वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन आर लंग्स. जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में, देयर आर अ पेयर ऑफ लंग्स. मतलब हमारी बॉडी में दो लंग्स हैं विच आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. देन ब्रीदिंग. ब्रीदिंग, इट इज द प्रोसेस इन विच एयर रिच इन ऑक्सीजन इज taken in the body and air rich in carbon dioxide is expelled out of the body of the organism with the help of breathing organs. Breathing क्या है? Breathing is a part of respiration, you can say. Breathing, like respiration जो process है उसका एक part breathing है. Breathing क्या होता है? Breathing is taking in of air. यहाँ पे we take in air जिसके अंदर जो हम atmosphere से air inhale करेंगे, मतलब we will breathe in that will be rich in oxygen. So taking in of air which is rich in oxygen and to give out the air which is rich in carbon dioxide, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना. So when we exhale, जो हम air बाहर दे रहे हैं will be rich in carbon dioxide. This process is called as breathing. Air is a mixture of all the gases. तो हम जब अंदर ले रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, तो हम वो एयर अंदर ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है और जो हम सांस छोड़ रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा. ब्रीदिंग टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स. जो हमारे लंग्स हैं, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उसके थ्रू हम ब्रीद करते हैं. अब ब्रीद मीन्स वन inhalation plus one exhalation. अब we say one breath. What is one breath? One breath is one complete inhalation and one exhalation. That is when you take in oxygen, take in air and then you release it out. This one inhalation and one exhalation together is called as one breath. Then comes mechanism of breathing. Breathing involves the movement of rib cage and diaphragm. We all know what is rib cage. Rib cage वो bony cage है, bony पिंजरा जिसे आप कह सकते हो, जिसके अंदर हमारे lungs और heart present होता है, ठीक, to protect them. And diaphragm is a muscular sheet जो rib cage के नीचे होता है. It divides the thoracic cage or the thoracic cavity of the body from the abdomen. तो जो rib cage और diaphragm का जो movement है, this movement is responsible for breathing.
ठीक है, कैसे होता है? फर्स्ट इज ब्रीदिंग इन, चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। ब्रीदिंग इन में क्या होता है? द डायफ्राम कम्स डाउन, इट्स अ डोम शेप। सी, जो ये डायफ्राम है, दिस इज डोम शेप्ड, ओके। ये डोम शेप जो है इसका, ये ऐसे रहता है नॉर्मल कंडीशन में। बट जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम हवा अंदर लेनी होती है, तो ये डायफ्राम नीचे आता है और जो रिब केज है इट विल गो अपवर्ड्स, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया चेस्ट कैविटी का। सो वी नो दैट वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो क्या होता है? द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी और द लंग्स कम हो जाता है। तो अंदर एयर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है एयर का वो ज्यादा है। व्हाट हैपेंस? एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कुछ भी पीते हैं, लाइक वी टेकिंग सम जूस, हमने जूस में स्ट्रॉ डाला और उसे हम सक करते हैं। व्हाट वी डू, हम सक करते हैं, हम अपने मुंह में लो वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कम करते हैं मुंह का, वी सक इट। तो अंदर हमने वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया, वेरएज बाहर प्रेशर ज्यादा है तो द जूस हमारे मुंह में आराम से आ जाता है। लाइकवाइज वॉल्यूम बढ़ा दिया, अंदर प्रेशर बढ़ गया, कम हो गया, सो बाहर की जो हाई प्रेशर है, द एयर इज सक्ड आउट इन द लंग्स फ्रॉम आउटसाइड। What happens in breathing out? अब ब्रीदिंग आउट में जो डायफ्राम नीचे आ गया था ये वापस ऊपर चला जाता है, सी, एंड जो रिब्स ऊपर गए थे ये भी नीचे आ जाते हैं। तो अंदर क्या हुआ? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया, मतलब वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा हो गया। सो चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर, स्मॉलर वॉल्यूम कम, प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम, तो एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बलून लेंगे, एक इन्फ्लेटेड बलून है, मतलब इसमें हमने हवा भर दी है और बाहर, अब तब तक तुमने उसको पकड़ा है तो वो ठीक है, जैसे हम उसे छोड़ते हैं रश होती है एयर बाहर, क्योंकि हमने उसके उतने वॉल्यूम में जितनी एयर भर दी है उसके कई गुना कम प्रेशर में बाहर एयर है। मतलब अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है बलून के वो एयर का और बाहर कम है तो वो तुरंत the surface of the balloon pushes the air outside. Similarly happens with lungs. Suppose बलून की जो वॉल्स हैं, वैसे तुम लंग्स समझो, लंग्स के अंदर हवा भरी है बहुत ज्यादा और बाहर इतना प्रेशर में एयर नहीं है, तो जैसे हम उसे छोड़ते हैं तुरंत द एयर कम्स आउट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इन ह्यूमन बीइंग्स many organs take part in the process of respiration. Together they form the respiratory system. Human beings में बहुत सारे organs जो respiration की process में involved होते हैं, and together when all these organs come together, when all the organs come together they form an organ system. So यहाँ पे respiratory organs साथ आ रहे हैं तो क्या बन रहा है? respiratory system। हमने पढ़ा लाइक अमीबा में सेल की मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाती है, इन फिशेस गिल्स आर देयर, देन अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन। लाइकवाइज ह्यूमंस में कई ऑर्गन होते हैं और ये ऑर्गन जब सारे साथ आते हैं तो क्या बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेजल पैसेज जिसे हम नेजल कैविटी भी कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। हम नाक से सांस लेते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम नोज, फ्रॉम नोज वी कम डाउन नेजल कैविटी, मतलब जो नेजल कैविटी है नाक नॉस्ट्रल्स के बाद जो कैविटी, दैट इज नेजल कैविटी, इसको हम नेजल पैसेज भी कहते हैं, वो आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या है? ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड होती है दो ब्रोंकाई में, दो ब्रोंकाई जाके खुलते हैं हमारे दो लंग्स में, एंड ऑल्सो डायफ्राम, द मस्कुलर शीट जो हमने पहले पढ़ी, these all are respiratory organs in humans. ये नॉस्ट्रल्स से ये अंदर गया, यहाँ से हवा अंदर जाएगी, ये नॉस्ट्रल्स, ये एरिया ये हमारा नेजल कैविटी हो गया। उसके बाद ये नेजल कैविटी यहाँ आई, दिस इज फैरिंग्स। जो ये माउथ और विंड पाइप के बीच की जगह है इसे हम कहते हैं फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद हमारे लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है,
And now trachea will divide into two bronchi: nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx जिसे हम voice box भी कहते हैं. Then trachea divide into two bronchi, और ये bronchi, these bronchi enter the two lungs, और ये रीडिवाइड होते हैं टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स. और ये ब्रोंकियोल्स रीडिवाइड, जो सबसे पतला, जो सबसे छोटा ब्रोंकियोल होता है, उसकी टिप पे देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज alveoli. ओके, एंड दिस इज अ मस्कुलर शीट लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज डायफ्राम. यही कंट्रोल कर रहा था जो thoracic cavity की वॉल्यूम थी, जिसके थ्रू ब्रीदिंग हो रही थी. ओके, द नेक्स्ट इज द एयर फॉर रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी. द एयर फॉर रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी एंटर्स थ्रू नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज. जो हमारी नोज के जो होल्स हैं, और द ओपनिंग्स, दे आर कॉल्ड एज नोस्ट्रिल्स. सो एयर फॉर रेस्पिरेशन इन द बॉडी एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स. From nose it goes to the nasal passage and then to the trachea or windpipe. Nose, nostril से अंदर गई, then nasal passage, this is nasal cavity, pharynx, this is nasal passage. उसके बाद ये आती है trachea में. Trachea को हम क्या कहते हैं? Windpipe भी कहते हैं. After trachea, the trachea runs on the neck and divides into two smaller tubes called bronchi. Singular bronchus. Its lower end. Trachea नीचे आई, it will run through the neck and will come down and divide. Trachea further इसके lower end पे divide हो जाती है two smaller और narrower tubes में, जिनको हम कहते हैं bronchi. और single bronchi को क्या कहेंगे? Bronchus. Each bronchus divides into the lung to form a large number of still smaller tubes called bronchioles. Each bronchus, एक bronchus आगे lungs के अंदर घुसने के बाद और divide करता है, redivides to form a million, like a very large number of still smaller tubes called as bronchioles. Okay, which has tiny sac-like structure called alveoli at the ends. ये bronchioles की ending पे छोटे-छोटे sac-like structures हैं. These sac-like structures are called as alveoli. Then what is alveoli? अब हम पढ़ेंगे. Okay, it is the alveoli where the gaseous exchange takes place. अब हम बोल रहे हैं कि lungs में gaseous exchange हो रहा है. Lungs are responsible for breathing. Lungs के अंदर after bronchi, bronchioles, then comes alveoli. Alveoli are the actual site जहाँ पे gaseous exchange चल रहा है gaseous exchange takes place between blood and cells. The wall of alveoli are very thin, surrounded by very thin blood capillaries. हमने पहले पिछले वीडियोस में पढ़ा था that every respiratory organ should have a huge surface area, rich in blood supply, have very thin membrane. So here comes that alveoli की जो membrane है, that is very thin and it is supplied by very thin blood capillaries, it is rich in blood supply. There are millions of alveoli in the lungs providing a large surface area for exchange of gases. Okay, so there are millions and millions of alveoli present inside the lungs. तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा surface area मिलेगी for exchange of gases. Then diaphragm. What is diaphragm? Diaphragm is a sheet of muscle below the lungs. ये क्या है? हमने देखा था जो lungs के नीचे ये sheet of muscles है, इसे हम कहते हैं diaphragm. Diaphragm का काम क्या होता है? It helps in breathing. ये diaphragm control करता है ना the volume of the thoracic cavity so that आराम से breathing हो सके. So it helps in breathing and then separates thoracic cavity from abdomen. Thoracic cavity from हमारी body में जो thoracic cavity है जिसके अंदर lungs, heart आते हैं,
इस थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी, मतलब जिसके अंदर स्टमक वगैरह है, हमारा स्टमक इंटेस्टाइन है, तो थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिन कैविटी को डिवाइड करने के में डायफ्राम इज द लैंडमार्क, जिसे हम कह सकते हैं कि इसके डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी. नाउ वी गो फॉर mechanism of respiration in humans. Oxygen diffuses out from the alveoli wall into the blood. Oxygen after inhale किया हमने बाहर से air, we after one inspiration हमने air inspire की, and the air after passing from nostrils, nasal passage, trachea, bronchi, bronchioles, it reaches alveoli. वो sac like structure में oxygen आ गई. अब क्या होगा, ऑक्सीजन एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है या कंसंट्रेशन ज्यादा है, एंड अब और वहां पे ब्लड कैपिलरीज भी है, मतलब ब्लड भी है, और ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है. सो डिफ्यूजन, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वेलाई की वॉल के थ्रू डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में चली जाएगी. नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज कैरीड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड. अब ब्लड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, रेड कलर पिगमेंट, दिस इज विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. ब्लड में तो हमको ये पता है ब्लड से ऑक्सीजन जा रही है, बट ब्लड में हीमोग्लोबिन के ऊपर, जस्ट सपोज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीजन बैठ के ट्रैवल करता है. ऑक्सीजन रोड जो है, रोड और द रिवर यू कैन से इज ब्लड, बट जो रोड में बस है, रिवर में जो बोट है जिसके ऊपर एक इंसान बैठ के ट्रैवल करेगा, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है, दैट इज हीमोग्लोबिन. As the blood passes through the tissues of the body, oxygen present in diffuses into the cell due to higher concentration in the blood. अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई थी एल्वेलाई से ब्लड में, और वो ट्रैवल कर रही है पूरी बॉडी में. तो जब वो सेल के पास पहुंचेगी, सेल के पास ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि वहां तो रेगुलर रेस्पिरेशन कंबशन चल रहा है, तो ऑक्सीजन तो यूज होती जा रही है. तो अभी ब्लड के पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, और जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो डिफ्यूजन भी लगा है. व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टू द सेल्स. Carbon dioxide gas is produced as waste product during respiration inside the body, diffuses into the blood due to high concentration in the tissue. अब जिस सेल्स में हमने ऑक्सीजन दी वहां पे कंबशन हो रहा है, मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज का बर्निंग हो रही है, ग्लूकोज बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंबशन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो अभी उन्हीं सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. अब वहां पे कंबशन चल रहा है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, टिश्यूज में वो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्लड. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यूज टू द ब्लड, एंड अगेन यही ब्लड, यही हीमोग्लोबिन will take back this carbon dioxide to the alveoli, where diffusion into the alveoli, it diffuses into the alveoli and expelled out through the nostrils. Exactly हो क्या रहा है, हम एयर अंदर ले रहे हैं, we'll inhale, उसके उस एयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन एल्वेलाई तक पहुंचती है, और एल्वेलाई में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो जाके ब्लड में आ जाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के दूसरे सेल्स तक जाती है, और जहाँ जहाँ पे हर सेल को जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, और उन्हीं से, और वो खाली हो जाता है हीमोग्लोबिन. ठीक है, अब हीमोग्लोबिन की सीट खाली है, उसे वापस आना है, तो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ड्यू टू रेस्पिरेशन. वो रेस्पिरेशन को, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बैठाएगा हीमोग्लोबिन, एंड इट विल कम बैक जहाँ से वो चला था, एल्वेलाई के पास. एल्वेलाई में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई में आती है, एंड वी एक्सहेल, या it is expelled out of the body through nostrils through the process expiration, जब हम breathe out करते हैं. So here we conclude the topic respiration.
That was our second life process, which included difference between aerobic and anaerobic respiration. What is ATP? What is respiration? How do we respire? Respiration in plants, respiration in animals, and respiration in human beings. So hope you liked the video. If you like the video, give it a thumbs up. And if you have any doubts, you can text us on WhatsApp in the numbers given below. You can also text us on Instagram, and also comment in the down here telling us about any doubts or any suggestions you have for us. Do share the video with your friends and family. Thank you. Bye.